Hello everyone, welcome to the next lecture on the CSR NET 2025. Today I will explain you how you can solve the partial differential equations solutions. Myself Dr. Harish Garg, you can follow my YouTube channel where you can find the various lectures on the CSR NET and the GATE mathematics. In this playlist you can see all these lectures are available free of cost and with the help of the fully shortcut tricks. I am very sure that if you watch all my these lectures you will qualify the examination. In this lecture, I will explain you all these four questions, whether it's a part B or part C. But all I have explained you with the help of the shortcut tricks. लेकिन कंडीशन सिर्फ मेरी एक ही है कि आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है जिससे आप अपना आंसर 1 मिनट में गेट कर पाओ. रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली so that you can get your answer in a 1 minute. Look at that. What is given to you? This is my Cauchy equations of the partial differential equations, and which you have to find the solution with the open set containing this. First of all, what is your target in this statement? Your target is to find the value of A and find the value of the B. Look at the options. But your target is not to find the value of the U. Clear? आपका टारगेट क्या है? A और B को निकालना, U को निकालना आपका टारगेट नहीं है. So once your target is not to find the U, then don't waste the time in the examinations to solve this Cauchy equation. मैं फिर कह रहा हूं, आपका टारगेट U निकालना तो नहीं है इस ऑप्शन इस क्वेश्चन में, तो एग्जाम में अपना टाइम मत वेस्ट करो U को निकालने के लिए. Clear? Now how you can solve this question in a couple of seconds. So look at the first option. A is equal to 1, B is equal to 0. Equation becomes x is my 0. A is equal to 1, B is equal to minus 1. So y is equal to x. Third equation is y is equal to minus of 2x. And the fourth equation is y is equal to minus x over 2. Is it okay? Now look at that. It's a Cauchy equations. So I can write the simple equation dx over 1, dy over 1, du over u square. Is it fine? So that implies x minus y is equal to constant. Is it okay? Fine. अब आप यहीं से आंसर देख सकते हो, x minus y is a constant. If I take constant is my 0, so ये आपका सेकंड ऑप्शन मिल गया आपको. बाकी तो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं हो रहा. So that means your A option, C option, D option cancel. B is my right answer. This is the first method. Fine. I will tell you the second method also. What is the meaning of the x minus y is equal to C1? That is called as the characteristics equations, or you can also call as the characteristics curve. तो इसका मतलब जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा, जो भी आएगा, मेरा टारगेट यू निकालना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ. फाइन. निकालना चाहूंगा मैं निकाल दूंगा, आप भी निकाल दोगे, पर मेरा इंटरेस्टेड ही नहीं है बिकॉज पूछा ही नहीं मेरे से, क्यों मैं अपना समय खराब करूं. So what is a U? U must be of the U is dependent on this characteristics curve. Fine. So then how you can find the solutions? So look at that. If I draw the graphically on the xy plane, x minus y is equal to C1. तो कोई भी एक लाइन ले लेते हैं. अगर मेरा C1 पॉजिटिव है, so this is the value of the x minus y is equal to C1. ओरिजिन से तो नहीं ना पास करेगा, तो मैंने देखो ओरिजिन से पास नहीं करा. Now look at the first options. x is equal to 0. ये लाइन आपकी x is equal to 0 की है. इस x is equal to 0 में take any point. You can see this x is equal to 0. This x is equal to 0. Take any point, say let's say any point. इसके नेबरहुड में एक ओपन सेट बनाइए. इसके नेबरहुड में ओपन सेट लिया. फाइन. इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा. ओके. इसके नेबरहुड में आप एक ओपन पॉइंट, एक पॉइंट लो इस x is equal to 0 पे. इसके नेबरहुड में एक ओपन सेट बनाइए. क्या ये इस लाइन को, जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स कर्व है, इसको कंटेन करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज इसका करेक्टरिस्टिक्स कर्व इज बेसिकली u. सो ये कंटेन नहीं करेगा, तो ए ऑप्शन आपका कट गया. y इज इक्वल, ओके पहले लास्ट ऑप्शन पे देख लेते हैं. y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू. y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू, ऐसा होगा. फाइन. अगर आप कहीं पे भी एक पॉइंट लो, यहां पे ले लिया, इसका ओपन नेबरहुड ये होगा, तो ये इस लाइन को नहीं कंटेन करेगा, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसिल. हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ तो कंटेन कर जाएगा ये, पर हर पॉइंट कंटेन होना चाहिए. फाइन. सिमिलरली अगर आप y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x का पॉइंट लोगे, तो आपका वो भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा इस तरफ से, तो यहाँ पे एक पॉइंट लोगे, ये भी कंटेन नहीं करेगा. फाइन. और अगर आप इसके थर्ड सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, अगर मैं इसमें एक पॉइंट ले रहा हूँ
y इज इक्वल टू x, तो ये ओरिजिन से पास करेगी लाइन एंड इट इज पैरेलल टू दिस लाइन। फाइन, कोई भी एक पॉइंट लीजिए इसके ऊपर, इसका नेबरहुड लेंगे तो देखिए आपका हर पॉइंट इसके नेबरहुड से कंटेन करेगा। फाइन, तो यस, द बी ऑप्शन इज द करेक्ट। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए, आंसर आपका 1 मिनट में आएगा। फाइन, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन वॉच अबाउट माई दिस लेक्चर ऑन दी Cauchy equations. You can watch about my this lecture on the py question of the Cauchy equations. You will know how you can tackle the question in a simple manner. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is given to you? This is the equation of Laplace, fine, and which are defined on the unit circle of radius 1 and it lies outside. इसके बाहर इसका सॉल्यूशन डिफाइन करा हुआ है. ऑल्सो एक और चीज क्या बताई गई है कि इसके बाउंड्री पे इसकी वैल्यू कितनी है 1. इसके बाउंड्री पे इसकी वैल्यू आपकी कितनी है 1. तो आपको सॉल्यूशन पूछ लिया गया. इस अगेन है वेरी सिंपल. ये क्या है लैपलेस इक्वेशन है. सेम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. कहां पे मिलेगा आपको लैपलेस इक्वेशन के लेक्चर में. इसको अगर आप सुनोगे तो 15 सेकंड में आपको आंसर मिलेगा और 15 सेकंड में ही मैं आपको आंसर यहां पे दिखा रहा हूं. कैसे सॉल्यूशन डिफाइन करोगे आप. u ऑफ x कॉमा वाई क्या होगा. इनिशियल कंडीशन क्या है 1 पे है तो आई कॉल एज ए 1 प्लस दिस कंडीशन आई कॉल एज ए लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1. दैट्स ओवर. तो अब आपका टारगेट क्या है इसमें लैम्डा को निकालना. तो इसमें फिल कर देते हैं. इसका u x कितना आ रहा है 0. इसका ट्वाइस डेरिवेटिव दिस u ऑफ वाई वाई कितना हो जाएगा. तो ये दोनों वैल्यू आप गिवन इक्वेशन में फिल करोगे. 4 लैम्डा इज माई 0 तो योर लैम्डा विल बी 0. तो आपका u कितना हो गया देयरफॉर u ऑफ x comma y is my 1. Fine. Now look at the option. They are talking about the solution and solution. Remember u is my solution. Fine. u ही तो आपका solution है ना. तो which is a 1 is my unique solution. Fine. So it has exactly one solution is the answer. अगर आपका solution x comma y हो, fine, so then it has infinitely many solutions. Clear? So the answer is B is my correct answer. Okay, look at this next one, which is equation of the wave equation. Fine. If you compare the wave equation by UTT is c square of uxx. What does the meaning of the c? c is my 1. Fine. अगेन इट्स अ वेरी सिंपल. सेम क्वेश्चन आपको वेव इक्वेशन में मिल जाएगा. आपको वेव इक्वेशन हीट इक्वेशन सब तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करे हुए हैं पहले से. इसका सॉल्यूशन क्या होता है मैं पहले यहां पे लिख देता हूं आपको सॉल्यूशन u x t. अगर आपकी वैल्यू u ऑफ x 0 पे fx है और पार्शियल डेरिवेटिव पे वैल्यू gx है तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f of x माइनस सी टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसको मैं नीचे लिख देता हूं प्लस 1 ओवर 2c x माइनस सी टी. आपको तो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है ना ये. क्यों? क्योंकि आप तो डायरेक्टली इसको लिखोगे वैल्यू फिल कर दूंगे ना सीधे ही मैं. नाउ लुक एट दी ऑप्शंस. क्या कह रहा है ये c1 हो गया. ओके f इज माई f g दिस इज माई g. फाइन. तो मैं इसकी वैल्यू यहां पे फिल कर देता हूं. दिस इज माई g. दिस इज 1 ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. c की वैल्यू मेरी 1 है तो इस यहां से c को मैं डिलीट कर देता हूं. फाइन. नाउ लुक एट दी ऑप्शंस. फॉर एवरी x की कोई मर्जी वैल्यू लीजिए आप. x को मैं 0 ले सकता हूं इजिली. फाइन. देन लिमिट t अप्रोचेस इंफिनिटी ऑफ द u. x की कोई वैल्यू लो. जैसे आपने इंफिनिटी लिया ये नंबर कितना हो जाएगा इंफिनिटी. ये नंबर कितना हो जाएगा एज t टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. और कंडीशन क्या दे रखी है एफ एक्स की वैल्यू 0 जाएगी जब भी मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन मोड ऑफ एक्स इंफिनिटी होगा. तो मोड ऑफ एक्स इज इंफिनिटी 0 प्लस 0 ओवर 2. सी की वैल्यू 1 थी. जैसे एक्स की वैल्यू टी की वैल्यू इंफिनिटी होगी दिस नंबर इज माई माइनस इंफिनिटी दिस इज प्लस इंफिनिटी.
फाइन। अब आपको इसकी इंटीग्रेट करना है तो कितना आ जाएगा, हाफ इज आउटसाइड log ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो ये कितना आंसर हो गया, इंफिनिटी। तो दैट मीन्स द whenever t approaches infinity u is my infinity, लेकिन फर्स्ट पार्ट आपका जीरो कह रहा है, सेकंड पार्ट इंफिनिटी कह रहा है। सेकंड थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, फॉर एवरी टी की कोई वैल्यू, अब लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी लेना आपको। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे x को इंफिनिटी ले लेता हूं, तो ये नंबर क्या होगा, फिर भी इंफिनिटी। व्हेन x अप्रोचेस इंफिनिटी दिस इज माय प्लस इंफिनिटी, फाइन। तो ये नंबर फिर से जीरो हो गया। जैसे ही x अप्रोचेस इंफिनिटी होगा ये आपका प्लस इंफिनिटी हो गया, और ये भी आपका प्लस इंफिनिटी हो गया। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, फाइन। सो दैट विल बी जीरो। इसकी इंटीग्रेशन कुछ भी हो, लेकिन लिमिट अगर a से a हो तो आंसर तो जीरो ही आएगा, सो आंसर विल बी जीरो। सो देयरफॉर u इज माय जीरो, करेक्ट ऑप्शंस, d is my right, wrong answer. So b and c are the correct option. अगर देखिए, अगर आपका रिएक्शन ये था एग्जामिनेशन में, अभी सॉल्यूशन देखोगे तो आपका रिएक्शन कैसे हो जाएगा, वाओ। फाइन। क्या आप कमेंट कर सकते हो, लाइक और कमेंट कर सकते हो वीडियो पे, और कमेंट करके बताइए क्या अभी तक के तीनों सॉल्यूशंस आपको इंटरेस्टिंग लगे कि नहीं लगे। चलिए लुक एट दिस नेक्स्ट वन, विच इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा हुआ है गेट 2022 का पेपर, और 15 सेकंड में आपको आंसर दिया था मैंने वहां पे भी। कहाँ मिलेगा वो आपको, आप देख सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ दी पीडी। इस लेक्चर को सुनेंगे, 40 प्लस क्वेश्चंस हैं फुली शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, सीएसआर नेट गेट दोनों के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है पार्शियल डिफरेंशियल की। पहले शॉर्टकट ट्रिक्स बता दूं कि मैं सीधा ही आंसर बता दूं पहले आपको। चलिए पहले देखते हैं, पहले इसको क्लासिफाई करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है इसका, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 36 माइनस 4c विच इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स दिस इज माई इलिप्टिकल। फाइन। अब मेरे को ये पता लग गया इलिप्टिकल, मैं ऑप्शन से देखता हूं, 1 माइनस 4 सेटिस्फाइड, 0 माइनस 1 सेटिस्फाइड, 0 1 सेटिस्फाइड, तो आंसर हो गया इसका ए बी एंड डी। समझ नहीं आया, 15 सेकंड लगे ना मेरे को आंसर निकालने में। क्यों लगे 15 सेकंड, क्यों, क्योंकि मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स का ही यूज करा है। अब मैं बताता हूं आपको कैसे। आप तो अभी तो आपको समझ नहीं लगा क्या हो गया, ये सर ने कैसे एबीडी कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट ट्रिक्स क्या लगाई मैंने इस पे। क्या बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में, जब भी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, यही तो होगी ना आपकी, प्लस, फाइन। इसको जब भी आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे, कभी भी आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दोगे, से ट्रांसफॉर्म मैंने कर दिया पी यू इग्जाई इग्जाई प्लस क्यू यू इग्जाई ईटा प्लस आर यू ऑफ ईटा, ईटा इज माई जीरो। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ना, इग्जाई इज फंक्शन ऑफ से ए एक्स प्लस बी वाई, और ईटा इज अ फंक्शन ऑफ द सी एक्स प्लस, यही तो होगा ना ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे भी प्लस कुछ लीनियर आएंगी, फाइन। इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो क्या रिलेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, जेकोबियन स्क्वायर, फाइन। और we all know for this case that because it's a linear, Jacobian is nothing but the determinant of the matrix, fine। now अब आप देखिए इस रिलेशन से आपको क्या मिला, इस रिलेशन से आपको मिला क्यू स्क्वायर माइनस 4p इंटू आर विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर। अब आप इस पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर आपकी क्या स्क्वायर है, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, प्रोवाइडेड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज माई नॉन जीरो। अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो है मान लो, तो आपकी क्यू स्क्वायर माइनस 4 pr कितना आएगा, जीरो आएगा ऑलवेज, फाइन। और अगर ये जीरो आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वेशन आपकी क्या मिलेगी आपको, ऑलवेज बी दी पैराबोलिक, फाइन। सो दैट मीन्स दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दी ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर ये नॉन
नॉन जीरो है, इधर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब अगर पहली इक्वेशन इलिप्टिकल है, मतलब बी स्क्र माइनस फोर ए सी इलिप्टिकल है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है इसकी, तो क्यू स्क्र माइनस फोर ए सी भी इलिप्टिकल होगा। फाइन। तो इसका मतलब अगर ये इलिप्स है तो ये भी आपकी इलिप्स बनेगी। अगर ये आपकी पैराबोला है, मतलब बी स्क्र माइनस फोर ए सी जीरो है, तो क्यू स्क्र माइनस फोर ए सी भी जीरो होगा, तो ये भी आपका पैराबोला होगा। अगर ये आपकी हाइपरबोलिक है ओरिजिनल, तो ये भी आपकी हाइपरबोलिक होगी। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन और द जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन जीरो। इज इट ओके? नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें मेरे को इलिप्टिकल मिल गया, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूं, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? इन्वर्टिबल है, नॉन जीरो, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, चॉइस आपकी है। ओके, तो जैसे ये नॉन जीरो मिल गया, इसका मतलब इन दोनों का बिहेवियर क्या होगा? सेम होगा। फाइन। और इसका बिहेवियर मेरे को क्या मिला था? इलिप्टिकल, तो इसका भी आंसर इलिप्टिकल ही चाहिए, तो चेक कर लेते हैं पहले में। बी बी स्क्र माइनस फोर ए इंटू सी विच इज लेस देन जीरो, यस इलिप्टिकल, करेक्ट आंसर। जीरो माइनस फोर ए इंटू सी, यस करेक्ट आंसर। बी स्क्र माइनस फोर, बी स्क्र माइनस फोर इंटू ए विच इज ग्रेटर देन जीरो, तब तो ये हाइपरबोलिक बन गया आपका, पर हमें तो इलिप्टिकल चाहिए, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन कैंसर। लास्ट ऑप्शन, टू स्क्र माइनस फोर विच इज लेस देन जीरो, तो ये भी आपका इलिप्टिकल हो गया, so दैट मीन्स डी इज दी राइट आंसर। सो ए बी डी आपको मिल गया आंसर। तो मैंने भी तो जो मैंने सीधा ट्रिक कर दिया था, मैंने भी तो यही सोचा था, बिकॉज मैं ऑलरेडी शॉर्टकट ट्रिक्स एक्सप्लेन कर चुका हूं, एंड आई अज्यूम दैट बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशंस यू ऑलरेडी वॉच माई दीज लेक्चर्स, सो दैट इन द एग्जामिनेशंस आपके पास समय 15 सेकेंड लगे। एक बात दिमाग में रखो, कोई भी एग्जामिनर ने आपको पेपर बनाया है, उसने भी यही सोच के बनाया होगा। फाइन, वो आपसे पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीजिए, फाइंड करिए, कैनोनिकल फॉर्म निकालिए एंड ऑल दैट, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। Objective is to get the conceptual knowledge. Fine. So this is the way you can get all these four answers in the fully shortcut tricks. Let me know in the comment box, are you enjoying this one? And I'm very sure now your reaction will change from the off to the wow. क्या आप कमेंट करके बता सकते हो क्या आपका आंसर off से wow में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? I will upload the next video very soon. Till then, you can share this video with your friends so that all students can learn the shortcut tricks and the answer in a quick manner. I hope you can subscribe my YouTube channel. Thanks for the watching. Best of luck, students.